તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચારની વાત કરીએ તો અફઘાનિસ્તાનમાં જ્યારથી તાલિબાનીઓએ ધુરા સંભાળી છે ત્યારથી ચીન અને પાકિસ્તાન ગેલમાં આવી ગયું છે। જાણે ચીન અને પાકિસ્તાનને નવા સાથી મળ્યા હોય તેમ વિશ્વમાં તેઓ તાલિબાનનો બચાવ કરે છે, પણ ચીન અને પાકિસ્તાન પોતાના સ્વાર્થ માટે તાલિબાનને ટેકો કરે છે એ પણ એક હકીકત છે। હાલ ભૂખમરા અને આર્થિક સંકટથી ઘેરાયેલા તાલિબાન હવે આર્થિક સહાય માટે ચીન પર નજર ઠેરવી રહ્યું છે। તાલિબાને જણાવ્યું છે કે અમારી સરકાર ચીનની આર્થિક સહાયથી ચાલશે। તાલિબાન પ્રવક્તા ઝબીઉલ્લાહ મુજાહિદે જણાવ્યું હતું કે તાલિબાન ચીનને અત્યંત મહત્વનો ભાગીદાર માની રહ્યા છે અને અમારી પ્રારંભિક સરકાર ચીનની આર્થિક સહાય પર આધાર રાખી રહી છે। ચીન અમારા માટે મૂળભૂત અને અસામાન્ય તક રજૂ કરી રહ્યું છે। ચીન અફઘાનિસ્તાનના પુનઃનિર્માણ અને દેશમાં મૂડીરોકાણ માટે તૈયાર છે। વિશ્વમાં નવા ટ્રેડ રૂટ છે તે શરૂ કરવાના ચીનના વન બેલ્ટ વન રોડ પ્રોજેક્ટ પ્રત્યે તાલિબાનને ઘણું માન છે। અફઘાનિસ્તાન સ્થિત તાંબાની ઘણી ખાણોને ચીનની મદદથી આધુનિક બનાવવામાં આવશે। સમગ્ર વિશ્વના બજારોમાં પહોંચવા ચીન અફઘાનિસ્તાનને મદદ કરશે। અફઘાનિસ્તાન કબજે કર્યા બાદ તાલિબાનની સરકાર રચાઈ રહી છે। સરકારના 80% સભ્યો તાલિબાની ટીમના છે। તાલિબાની વડા મુલ્લા અબ્દુલ ગની બરાદરના પુત્રને પણ સરકારમાં ટોચનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે। તાલિબાન ભલે હિંસા ન ફેલાવવાની વાતો કરતું હોય, પરંતુ તાલિબાનો ચીનના દમ પર ભારતના કાશ્મીર મુદ્દે નિવેદનબાજી કરી રહ્યા છે। કાશ્મીરના મુસ્લિમો માટે અવાજ ઉઠાવવાની વાતો તાલિબાન કરી રહ્યું છે। આ સાથે તાલિબાન વિરોધીઓને જો ભારત આશ્રય આપશે તો તાલિબાન તેના જવાબમાં ચેતવણી આપશે તેવી વાત પણ કહી છે। આમ તાલિબાન ડ્રેગનના દમ પર વિશ્વને હંફાવવા માટે નીકળી પડ્યું છે। તો અમારી સરકાર ચીનની આર્થિક મદદથી ચાલશે તેવું તાલિબાનીઓ જણાવે છે। હવે સંપૂર્ણપણે અફઘાનિસ્તાન પર જ્યારે તાલિબાન કબજો જમાવી ચૂક્યું છે, આજે તાલિબાનની નવી સરકાર બનવા જઈ રહી છે, ત્યારે તાલિબાન છે તે ડ્રેગનના દમ પર નાચી રહ્યું છે। તેવું જણાવી રહ્યું છે કે ચીનની આર્થિક સહાયથી અમારી સરકાર ચાલશે, કારણ કે ચીન અફઘાનિસ્તાનના પુનઃનિર્માણ અને મૂડીરોકાણ માટે ચીન તૈયાર છે। તો હવે જોવું રહ્યું કે ચીન કેવી રણનીતિ અપનાવે છે, ચીન શું કહે છે, કારણ કે ચીન જ્યાં સુધી ચીનને કોઈ લાભ ન દેખાય ત્યાં સુધી ચીન કોઈપણ પ્રકારની સહાય કોઈપણ દેશને નથી કરતું, તો અચાનક તે અફઘાનિસ્તાનને આટલી સહાય કરવા માટે કેમ તત્પર છે? ચીનને કયા પ્રકારનો રસ છે? ચીન શું જોઈ રહ્યું છે અફઘાનિસ્તાનમાં? આખરે એવું આ તમામ બાબતોનું આજે આપણે વિશ્લેષણ કરીશું। તાલિબાનીઓ એવું જાહેર કર્યું છે કે ચીનની આર્થિક મદદથી અમે અમારી સરકાર ચલાવીશું, કારણ કે ચીન પણ અફઘાનિસ્તાનના પુનઃનિર્માણ માટે તૈયાર છે। મોટા મોટા મૂડીરોકાણ કરવા માટે ચીન અફઘાનિસ્તાનમાં તૈયાર છે। તો આખરે જે ચીનની જે દોસ્તી છે અફઘાનિસ્તાન સાથે, તે ભારત માટે કેવો રંગ લાવશે? ભારતને કયા કયા જોખમોનો સામનો કરવો પડશે? આ તમામ બાબતો છે આજે આપણે તેનું કરીશું વિશ્લેષણ। ભારત માટે કેવી અસર પડશે? ભારતને શું છે જોખમ જો ચીન અને અફઘાનિસ્તાન એક થાય છે? પાકિસ્તાન અને ચીન તો આમ પણ પહેલેથી જ ભારતના એક પ્રકારે દુશ્મન માનવામાં આવે છે, કારણ કે પાકિસ્તાનની ધરતી ઉપર જ જે આતંકવાદ છે તે ફૂલતું ફાલતું રહ્યું છે। તો જે આ તમામ બાબતો છે એની પર આજે આપણે વિશ્લેષણ કરીશું। ચીનને શા માટે આટલો ઇન્ટરેસ્ટ છે અફઘાનિસ્તાન પર? આ સાથે અમારા गेस्ट છે તે हमारी साथ जोड़ाई चुके हैं। कमर आगा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार कमर आगा सर जी। सर आज फिर से यही मुद्दा हम आपके सामने लेकर आए हैं कि अफगानिस्तान ऐसा बता रहा है, इतना कॉन्फिडेंस के साथ वो बता रहा है कि हमारी आर्थिक सहाय चीन करेगा। आखिर इतना कॉन्फिडेंस उसमें आया कहाँ से, और चीन भी उसके लिए रेडी है सर? तो आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, चीन ने पहले ही कह दिया कि हम वहाँ पे डेवलपमेंट का काम करेंगे दो तरीके से। एक तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसको बढ़ा के काबुल तक जोड़ेंगे, यानी सड़क को पाकिस्तान से काबुल तक लाएंगे। रेलवे लाइन की भी बात चल रही है। दूसरी तरफ ये भी है कि वो जो है चाइना से अफगानिस्तान का छोटा सा एक बॉर्डर भी मिलता है, लगभग 70-75 किलोमीटर का।
वो वहाँ से, जो कि जिंजियान प्रोविंस जहाँ पे मुस्लिम बहुमूल के लोग रहते हैं, उसको भी वहाँ से भी एक रोड वो निकाल के लाना चाहते हैं, और रेल की भी कनेक्टिविटी की भी बात सोची जा रही है। तो इस तरह से दूसरी चीज़ ये है कि अफ़गानिस्तान में लगभग $3 ट्रिलियन के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, और चाइना वहाँ से पहले से ही वहाँ पे तांबा, लोहा, ये सब चीज़ें वहाँ से निकाल रहा है, और उसका प्लान है कि बड़े मात्रा में निकाले। उसके लिए उसको रोड कनेक्टिविटी और ट्रेन भी चाहता है कि चल जाए, तो ताकि वहाँ से वो लिथियम जो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो लिथियम भी चाइना में लगभग 800-900 बिलियन डॉलर के करीब का लिथियम वहाँ पे मौजूद है। तो वो उसको भी निकालने का उसका प्लान है, तो उसके लिए वो पूरी तैयारी कर रहा है। तालिबान को ये लगता है कि ये बड़ी रकम मिल जाएगी, उसके पास आ जाएगा, तो उससे वो डेवलपमेंट का काम कर लेगा, उसकी इकनॉमी सुधर जाएगी। और चाइना को ये लगता है कि तालिबान से उसको, क्योंकि डिपेंडेंट है, सस्ता उसको खनिज पदार्थ मिल जाएगा। पाकिस्तान बीच में ये कोशिश कर रहा है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान चाइना और अफ़गानिस्तान को करीब ला रहा है। देखिए, ये गवर्नमेंट वही काम करेगी जो पाकिस्तान उससे करेगा। इसमें पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट है, पाकिस्तान की भी कंपनीज और पाकिस्तान के भी लोग इससे जुड़े हुए हैं जो ये काम करने जा रहे हैं। पाकिस्तान, दो कारण से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में आ रहा है, चाइना भी। उसके एक तो ये कि सामरिक तौर से देखा जाए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है अफ़गानिस्तान। इसके बॉर्डर जो हैं, एक तरफ तो मिलते हैं ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, और फिर दूसरी तरफ ये है कि और ईरान से बहुत बड़ा इसका बॉर्डर मिलता है, पाकिस्तान से मिलता है, चाइना से मिलता है। तो जिसका भी वर्चस्व यहाँ पे होगा वो सेंट्रल एशिया में एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। दूसरी चीज़ ये कि तुर्कमेनिस्तान से गैस पाइप बहुत है, गैस वहाँ पे बहुत पाई जाती है, उसको भी लाने का, नेचुरल गैस भी इन लोग का लाने का प्रोग्राम अमेरिका का है। तालिबान उनसे भी बात कर रहे हैं कि वो उसकी मदद करेंगे। और फिर उसके अलावा ये कि पाकिस्तान ही का रूल वहाँ पे चलेगा, जो पाकिस्तान चाहेगा वो होगा। तालिबान ने कहा पहले कि हम कश्मीर में इंटरफियरेंस नहीं करेंगे, लेकिन जब प्रेशर पड़ा उनके ऊपर पाकिस्तान का, तो उन्हीं ने अब कहने लगे कि हम कश्मीर का भी मुद्दा उठाएंगे और दूसरे भी मुस्लिम इश्यूज जो हैं उनको भी उठाएंगे। तो देखा जाए तो ये पाकिस्तान का इनडायरेक्ट रूल है वहाँ पे, जो पाकिस्तान काफ़ी समय से अपने इस शासन को वहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहता था, डायरेक्ट जा नहीं सकता था। तो ये है रिलीजियस, धार्मिक जितने मुद्दे हैं वो तालिबान के पास रहेंगे, इकनॉमिक डेवलपमेंट इश्यूज ये सब जितने भी हैं ये पाकिस्तान के पास रहेंगे। पाकिस्तान ने ये भी कह दिया है फ़ौज का भी वो गठन करेगा, बनाएगा, वहाँ पे मदद करेगा। तो कई टियर की गवर्नमेंट वहाँ पे बन रही है। अखुंज़ादा जो हैं वो रिलीजियस हेड होंगे और वहाँ के मेन सुप्रीम लीडर होंगे, और मुल्ला ब्रदर जो हैं वहाँ के प्रेसिडेंट की हैसियत से काम करेंगे। प्राइम मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम चला है, और मुल्ला याकूब का भी नाम है, जो मुल्ला अमर के लड़के हैं उनका भी नाम है। अब ये हो रहा है कि सिराजुद्दीन बनेंगे। फिर इस तरीके से ईरान मॉडल को वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह की गवर्नमेंट। और तालिबान जो है ये एक धार्मिक मलेशिया हो जाएगी, और एक वैसी जो कि सबसे पावरफुल होगी, और उसके साथ साथ एक आर्मी भी बनाने का इनका प्लान है। ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सब तालिबान इस कैपेबल हैं इन सब चीज़ों के करने के अंत में, इसलिए कि वहाँ पे लोकल सपोर्ट तो इनको है ही नहीं। चाइना की सपोर्ट से ये क्या मुल्क चला लेंगे, या पाकिस्तान की सपोर्ट से? भाई लोकल सपोर्ट तो इनके पास इतनी कम है जिसकी कोई इंतहा नहीं। पश्तून भी इनको सपोर्ट करने पे तैयार नहीं है अधिकतर। पर पिछले 20 साल में अफ़गानिस्तान बहुत बदल चुका है। लड़कियाँ काम कर रही थी, पढ़ रही थी, लिख रही थी, स्कूल कॉलेजेस में जा रहे थे, एजुकेशन बहुत बड़ी है। अब ये दोबारा से उनको घर में रखना चाहते हैं, दोबारा से उनके ऊपर दमन की नीति कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये इनको कामयाबी मिलेगी। फिर तालिबान के अंदर भी एक ग्रुप तो है नहीं, 20-25 ग्रुप हैं, उनके आपस में भी झगड़े हैं, कैबिनेट बनाने के लेके भी झगड़े बने हुए हैं। देखिए क्या होता है, किस तरह से होते हैं। अगर अराजकता फैलेगी तो बहुत बुरे हालात होंगे, भारत के लिए एक मुश्किल की बात होगी। जी सर, मैं बात कर रही हूँ, जैसे चीन है, चीन किसी भी जगह पे अगर उसको इंटरेस्ट ना हो, वो विस्तारवादी है, सबको पता है। तो अफगानिस्तान में जैसे आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसी को लेकर वो अफगानिस्तान की हेल्प कर रहा है। आगे अफगानिस्तान की परिस्थिति क्या होगी, जो चीन
पूरी तरह से अगर अफगानिस्तान पर वो भी कंट्रोल कर सकता है सर? नहीं, पाकिस्तान ही का कंट्रोल रहेगा। चाइना इनडायरेक्टली पाकिस्तान के माध्यम से अपना वो बनाएगी कंट्रोल। ठीक है सर, तो फिर चाइना इस का हिसाब इंटरेस्ट से इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा और सामरिक। जी सर, सर इस हिसाब से जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, ये तीनों की जो तिगड़ी है वो भारत के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है सर? ये बहुत खतरनाक साबित होगी। ये एक्सक्यूज मी, ये बहुत खतरनाक साबित होगी। उसकी वजह यह है कि ये तीनों देश जो हैं इस समय जो है वहाँ पे ये भारत समर्थक नहीं नज़र आते। ये सब तीनों भारत के ख़िलाफ़ हैं। तालिबान हमेशा से भारत के ख़िलाफ़ रहा है, कोई नई बात नहीं है। अलकायदा भी वहाँ पे मौजूद है, ISS भी है जो भारत के ख़िलाफ़ है। फिर उसके अलावा ये है कि चाइना भी घुसने की कोशिश। लेकिन देखिए अभी एक चीज़ और भी है, तालिबान को मान्यता नहीं मिलेगी अगर ये सब हरकतें की, उन्होंने आतंकवाद को सपोर्ट किया, ये किया। पर चाइना अकेला उस मुल्क को, किसी भी एक मुल्क को नहीं चला सकता। अल्टीमेटली उनको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी पैसे की ज़रूरत होगी। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, चाइना अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है। तो ये एक बड़ी समस्या उनके सामने बनी रहेगी। ये सोच लेंगे कि हम इस तरह से कर लेंगे तो बन जाएगा, चाइना उनको पैसा दे देगा पूरा। चाइना तो उतना ही पैसा देगा जितना वो समझेगा ठीक है, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से है। और कितना अगर स्थिरता बनी, क्या ये भी है कभी चाइना को इस बात का भी डर है कि क्या तालिबान जो है वहाँ पे स्थिरता बनाए रखेंगे, स्टेबिलिटी को मेंटेन कर लेंगे। अगर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो चाइना पैसा नहीं देगा, उसको अपना खनिज पदार्थ चाहिए। अगर खनिज पदार्थ नहीं जाएगा वहाँ से तो इनस्टेबिलिटी रहेगी, तो वो खनिज पदार्थ कैसे ले जाएगा? और खनिज पदार्थ ले जाने के लिए ज़रूरी है सड़कों का बनना, इसलिए कि ट्रक के माध्यम से नहीं जाएगा, लार्ज स्केल ट्रांसफ़र की ज़रूरत पड़ेगी, वो रेलवे तक की ज़रूरत पड़ेगी, तभी उनको सस्ता पड़ेगा। तो ये बहुत दुश्वारियाँ हैं। और तालिबान जो है ये बहुत कैपेबल नहीं है, ये इनका धार्मिक एजेंडा तो ये जानते हैं चलाना, मगर शासन करना ये कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और अगर इन्हीं ने अपना कट्टरपंथी धार्मिक एजेंडा वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया तो वहाँ पे दूसरी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। और इनकी सपोर्ट पहले से कम है मुल्क के अंदर, और मैं समझता हूँ कि और वहाँ पे वीपन बहुत है, सबके पास तो असलहे हैं वहाँ पे। बहुत से ग्रुप्स नए खड़े हो जाएंगे, पुराने हैं वो भी रिवाइव कर जाएंगे। ये ख़तरा बना हुआ, इसलिए चाइना बहुत फूक के कदम रखेगा। दूसरी चीज़ ये कि तालिबान का अमेरिका से भी एक पैक्ट हुआ है, और अमेरिका से भी उन्हीं ने बहुत से वायदे किए हैं। तो क्या अमेरिका बर्दाश्त करेगा चाइना का बहुत ज़्यादा इंटरफियरेंस? वो भी नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके में एक बहुत फाइन बैलेंसिंग एक्ट की ज़रूरत है, डिप्लोमेसी की ज़रूरत है, जो तालिबान नहीं कर पाएंगे। हालांकि पाकिस्तान उनके लिए ये सब काम कर रहा है, पाकिस्तान उनके लिए पूरी कोशिश कर रहा है, और डिप्लोमेसी का भी काम कर रहा है, रिकग्निशन भी दिलाने का काम कर रहा है, वो सब तो कर रहा है। लेकिन क्या उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो स्थिरता है। अभी जल्दी है कुछ कहना, मैं समझता हूँ कि थोड़ा हमको इंतज़ार करना चाहिए, देखना चाहिए। अभी तो लोग डरे सहमे हुए हैं, इसलिए जो भी ये कह रहे हैं कोई उसका अपोजिशन नहीं हो रहा है। लेकिन 3 महीने से 6 महीने के बीच में अपोजिशन भी खड़ा हो सकता है। ऑलरेडी पंजशीर में लड़ाई चल रही है, ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा, ये सब 58% पॉपुलेशन है। और दूसरे छोटे छोटे इथनिक ग्रुप जो हैं ये तालिबान के सब खिलाफ हैं। तालिबान जो है ये पश्तून मलेशिया है, और पश्तून में भी तालिबान को पूरी सपोर्ट नहीं है। पहले थी, ऐसा में नहीं है, इसलिए कि पश्तून भी चाहता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो, तरक्की हो। इस तरह के कट्टरपंथी हुकूमत उनको भी नहीं पसंद है। तो देखना यह है कि क्या अपोजिशन भी यूनाइट हो रहा है। तालिबान सेना के बहुत से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, पंजशीर भी पहुँच चुके हैं। क्या होगा ये कहना अभी जल्दी है, लेकिन ये है कि इतना आसान नहीं होगा इनके लिए वहाँ पे शासन को इस्टेब्लिश करना। गवर्नमेंट तो ये बना लेंगे, हो सकता है आज ही बना ले या कुछ दिनों में। वो गवर्नमेंट कितनी स्टेबल होगी ये देखना पड़ेगा, और पाकिस्तान पीछे से कितना रोल प्ले कर सकता है। इसलिए कि अफ़गानिस्तान की आम जनता जो है वो
पाकिस्तान के बहुत खिलाफ है। उसका मानना ये है कि अफगानिस्तान की जो हालात बिगड़े हैं वो केवल पाकिस्तान की वजह से, वो तालिबान से ज़्यादा पाकिस्तान को बुरा समझते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ है। और वहाँ पे भारत का बहुत बड़ा समर्थन है, भारत की सपोर्ट बेहद है वहाँ पे, क्योंकि भारत ने वहाँ पे डेवलपमेंट का काम किया था। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की जगह भारत जैसा डेवलपमेंट काम कर रहा था वो करे डेवलपमेंट। तो ये बहुत विरोधाभास है वहाँ के ऊपर। इसको सॉर्ट आउट करना इस विरोधाभास के लिए को मैं समझता हूँ आसान काम नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल बातें हैं। अब हमको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, देखते हैं क्या है। गवर्नमेंट तो बन जाएगी, कोई भी बना ले, मान्यता कितना समय लगेगा मान्यता मिलने में, इनको क्या मिलेगा, इसलिए कि अमेरिका भी चाहेगा कि तालिबान अपना एजेंडा न लगाएं जो पुराना धार्मिक का इन्हीं ने वायदा भी किया है। पाकिस्तान चाहता है कि वही एजेंडा चले। तो ये चीज़ें हैं। फिर तालिबान के अंदर अल-कायदा भी है वहाँ पे, ISS भी है वहाँ पे, इनका क्या रोल होगा। तालिबान ने कहा था कि ये अपनी जो अफगानिस्तान की ज़मीन है उसमें वो फॉरेन मिलिटेंट्स को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन वहाँ पे तालिबान भी अल-कायदा भी बैठा हुआ है और ISS भी बैठी हुई है, दोनों हटने का नाम नहीं ले रहे। तो बहुत सी चीज़ें देखिए, अमेरिका कैसे बिहेव करता है, अमेरिका का क्या रुख होता है, यूरोपियन यूनियन किस तरह से करती है, वो लोग भी काफ़ी चिंतित नजर। भारत अकेला नहीं है, भारत के साथ अमेरिका भी है, वो भी है। दूसरी बात ये कि भारत के साथ ईरान समेत जितने भी पड़ोसी देश हैं अफगानिस्तान के, वो सब भारत की तरफ देख रहे हैं और भारत के साथ मिलके वो भी एक जॉइंट स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। जी सर, तमाम जानकारी देने के लिए आपका खूब खूब शुक्रिया सर। संदेश न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया सर, धन्यवाद। અને હવે નજર કરીએ સંદેશ ન્યૂઝપેપરમાં છપાયેલા અન્ય મોટા સમાચાર પર। સંદેશ ન્યૂઝપેપર પર છપાયેલા તમામ મહત્વના સમાચારો પર એક નજર। અમેરિકાના 6 રાજ્યોમાં ઈડાનું તાંડવ, 46ના મોત, 6 કરોડ લોકો પ્રભાવિત। સેન્સેક્સ તેજીમાં મદમસ્ત 58,000નું શિખર સર કર્યું। નિફ્ટી 17,300 ને પાર। સુપ્રીમની ફટકાર બાદ ફાયર NOC વિનાની હોસ્પિટલો પર તવાઈ। ગુજરાતના સિંહો માટે 1060 કરોડનો પ્રોજેક્ટ કેન્દ્ર જાહેર કરશે। રાજકોટના RK ગ્રુપ પર IT રેડ બાદ 25 પૈકી એક લોકરમાંથી 3 કરોડ રોકડા મળ્યા। સરકાર ગાઈડલાઈન તૈયાર કરશે ત્યાં સુધીમાં કોરોનાનો થર્ડ વેવ પૂરો થઈ જશે, સુપ્રીમ કોર્ટનું કહેવું। દેશ વિદેશ અને પ્રદેશના તમામ મહત્વના સમાચારો જાણવા માટે આપ વાંચતા રહો સંદેશ ન્યૂઝપેપર।